بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تا چہارم، پارٹ نمبر 30۔ اب میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اسلام میں مالک نے جن کاموں سے روکا ہے پوری جان لگا کر ان کاموں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ شاید میرے مالک کے سامنے جانے کا میرا منہ ہو جائے۔ میرے مولانا صاحب کو بتایا کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں، آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ میری چاروں طرف بہت سے مسلمان رہتے ہیں۔ ہمارا ایک کرایہ دار غلام حیدر نام ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں نے ان سے ایک بار کہا، تم ہر مہینے میرے ماں باپ کو کرایہ دیتے ہو، اگر تم ان سے مسلمان ہونے کو کہو تو کیا خبر وہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ہمارا پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا۔ وہ بولے، تمہارے بابا علاقہ کے پردھان ہیں، اگر میں نے ان سے کہہ دیا تو ہمیں جینا مشکل کر دیں گے۔ میں نے کہا، تم خدا سے نہیں ڈرتے، میرے بابا سے ڈرتے ہو، اس لیے یہ کعبہ کا فوٹو ہٹا کر میرے بابا کا فوٹو لگاؤ اور روزانہ اس کا نام جاپ کر کے میرے بابا کو ڈڈوت کرنا۔ میرے بابا نے کسی دن دیکھ لیا تو وہ تمہارا کرایہ معاف کر دیں گے، تمہارے مزے آ جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو سید بتاتے ہو، خدا کے سامنے تمہیں بھی جانا ہوگا۔ میں مالک کے سامنے ہی لٹھ ماروں گا کہ انہوں نے سید ہو کر ایک دن بھی ہمیں ایمان لانے کو نہیں کہا۔ سوال، اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب، میں نے مولانا صاحب سے اپنی روایات سنائی اور 4 بڑے مولاناؤں کے پاس سے واپس آنے کی بات سنائی۔ مولانا نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ ان کا ایسا کرنا ٹھیک تھا اور مجھے تسلی دی۔ سوال، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جواب، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ بڑی لڑکی کی شادی میں نے کر دی ہے۔ ہمارا سماج اصل میں پٹھانوں سے بہت ملتا جلتا ہے، بہت شرم و حیا ہے، مردوں کا رہنا باہر اور عورتوں کا اندر۔ میں اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی سے آج تک بات نہیں کر سکتا۔ ماں بیٹھی ہوگی تو میں اس کو ہی کام بتاؤں گا۔ وہ کبھی کہتی بھی ہے کہ یہ تیری 5 ہاتھ کی بہو ہے، تو اس سے کیوں نہیں کہتا؟ میں کہتا ہوں، ماں جب تو مر جائے گی تب اسے کہوں گا۔ ہمارے ہاں ابھی تک لڑکی کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے۔ پورے خاندان میں میں نے بغاوت کر کے بڑی لڑکی کو پڑھایا، ہائی اسکول پاس کیا تو اس نے کہا، پتا جی مجھے 2000 روپے چاہیں گے۔ میں نے کہا، بیٹی 2000 کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا، 1000 کا موبائل مل رہا ہے۔ میں نے کہا، موبائل کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا، بات کیا کروں گی؟ میں نے پوچھا، اور 1000 کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا، جنس لاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ 2000 کی جگہ 5000 دوں گا، مگر 15 دن کے بعد۔ میں نے لڑکے والوں کو بلوایا جہاں رشتہ طے کر رکھا تھا اور کہا، 8 دن میں پھیرے پھروا لو تو لڑکی تمہاری، ورنہ میں کسی دوسری جگہ شادی کر دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے، بابا سے کہہ کر پنڈت بلوایا اور پھیرے پھروا دیے۔ میں نے لڑکی کو 2500 روپے دیے اور کہا، آدھے تو یہ لو اور آدھے اس دن دوں گا جس روز گود میں بٹھا کر رخصت کرنے کے لیے تجھے گاڑی میں بٹھاؤں گا۔ آج ہائی اسکول کر کے موبائل اور جنس مانگ رہی ہے، اگر انٹر کر لیا تو کسی بھنگی کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے گی کہ پتا جی یہ تمہارا داماد ہے۔ میں نے عہد کر لیا کہ لڑکی کو 5ویں سے آگے ہرگز نہیں پڑھانا ہے۔ یہ بات میں نے مولانا صاحب سے بھی کہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، آپ کو اسلام کی ہر بات ماننا ہوگی۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کو فرض کہا ہے، لڑکا لڑکی دونوں کو پڑھانا ضروری ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسلامی ماحول اور تربیت میں نے وعدہ کر لیا، اب میرا یہ پکا ارادہ ہے کہ اپنے ان تینوں بچوں کو اسلامی تعلیم کی جو سب سے بڑی ڈگری ہوگی اس تک پڑھاؤں گا۔ آگے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بالکل اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں شراب کا بہت عادی تھا، حالانکہ جب میں ہندو تھا ہمت کر کے 2 مہینے 3 مہینے تک کئی بار شراب چھوڑی اور دوستوں کو اپنی ہاتھوں سے پلائی، مگر خود نہیں پی۔ مگر جب سے میں نے کلمہ پڑھا، اب زندگی بھر نہ پینی ہے نہ پلانی ہے، نہ پینے والوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ 15 دن ہو گئے، مجھے خیال بھی نہیں آیا، اور مالک کا کرم ہے کہ کسی دوست نے بھی میرے سامنے نہیں پی، حالانکہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے یا اسلام قبول کر لیا ہے۔ سوال، آپ نے یہ باتیں اپنی بیوی سے بتا دی؟ جواب، میری بیوی میری ماں کی طرح بہت دھارمک اور بہت کٹر ہے۔ جب مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے تو میں نے بتایا کہ وہ تو بہت کٹر ہندو ہے، جس روز گوشت کھا کر آتا ہوں گھر میں گھسنا مشکل کر دیتی ہے، نہ جانے اس کو کیسے خوشبو آ جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کٹر ہندو ہی سچی مسلمان ہوتی ہے، دھرم پر انسان اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہی پابندی کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ راستہ غلط ہے اور سچا راستہ اسلام ہے تو اسلام پر بھی وہ بہت سختی سے عمل کرے گی۔ میں نے پھلک میں مولانا صاحب کے بھانجے کے موبائل سے اس کو بتا دیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ بہت ناراض ہوگی۔ میں نے یہ کہہ کر بات بند کر دی کہ میں دوسرے کے موبائل سے فون کر رہا ہوں۔ سوال، اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب، اگلے روز صبح کو میرے مقدمے کی تاریخ تھی، مجھے صبح وکیل سے بھی ملنا تھا، اس لیے رات کو مولانا صاحب نے اپنی گاڑی سے کھتولی پہنچا دیا۔ رات کو 12:45 پر گھر پہنچا۔ مہارانی جی غصے میں بھری تھی،
धक्के देने लगी, बार बार गालियां दी। 25 साल का सारा अदब भूल गई। कहने लगी कि तू धर्म भ्रष्ट करके आया है, तू मेरा क्या लगता है, भाग जा। न जाने क्या क्या कहा। सुबह तक लड़ाई होती रही। मौलाना ने बीवी को दावत देने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर एक पॉइंट बता दिया था। सुबह होने को ही मैं इस डर से कि दिन निकल गया तो ये सबको बता देगी, इसलिए मैंने आखिरी तीर के तौर पर उसको इस्तेमाल किया। मैंने उससे कहा कि तू असली हिंदू है या नकली। उसने कहा असली हूँ, बिल्कुल असली। मैंने कहा अगर असली हिंदू है और मैं इस्लाम की चिता में जल गया हूँ तो तुझे भी मेरे साथ सती हो जाना चाहिए। अब तू मुझे छोड़कर या धक्के देकर बाजारी बनेगी या दूसरे के पास बैठेगी। भगवान ने तुझे मेरे साथ बांधा है तो अगर असली है तो मेरे साथ सती हो जाना चाहिए। तीर निशाने पर लग गया। वो चुप हो गई। देर तक हिचकियों से रोती रही। मैं उसके करीब गया, प्यार किया और दुख सुख और जीवन मरण में साथ देने के वादों की दुहाई देकर मुसलमान होने के लिए कहा। वो तैयार हो गई। टूटा फूटा कलमा पढ़वाया। सुबह फजर की नमाज हम दोनों ने एक साथ पढ़ी। बीवी के मुसलमान होने की अपने मुसलमान होने से ज्यादा मुझे खुशी हुई। मुझे मौलाना साहब की हर बात सच्ची लगने लगी। उन्होंने ही कहा था कि बीवी को छोड़ने की बात क्या मतलब, उसको जन्नत तक साथ ले जाना है। सवाल आप का क्या इरादा है, इस्लाम की तालीम के लिए आपने क्या सोचा? जवाब, हमारे इलाके में एक मौलाना साहब मस्जिद में इमाम है। मैं रोजाना रात को उनके पास जा रहा हूँ। मुझे जमात में जाना है मगर मुकदमों की तारीखों की वजह से अभी मजबूर हूँ। मैंने अपनी बड़ी लड़की और दामाद को भी मरने के बाद क्या होगा और आपकी अमानत पढ़ने के लिए दी है। सवाल, अरमगान के वास्ते से आप मुसलमानों से कुछ कहना चाहेंगे? जवाब, मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये दीन जब अमानत है, जैसा कि मौलाना साहब ने आपकी अमानत आपकी सेवा में लिखा है, तो फिर इसे सारे संसार तक पहुंचाना चाहिए। आज के दौर में इस्लाम पहुंचाना बहुत आसान है। मैं लाकर जाट में हूँ। जाट कौम की साइकोलॉजी अच्छी तरह जानता हूँ। जाट बहुत लालची होता है और लालची से ज्यादा डरपोक होता है। खुसूसन जेल और सजा से जितना जाट डरता है शायद दूसरा नहीं डरता। अहमद भाई, मैं आपसे सच कहता हूँ कि अगर मरने के बाद क्या होगा, दोज़ख का खटका हिंदी अनुवाद तर्जमा करके जाटों तक पहुंचाया जाए, कुरान मजीद में जन्नत और दोज़ख का जो जिक्र है उनको सुनाया जाए, तो जाट सारे के सारे जरूर मुसलमान हो जाएंगे। इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब दीन अमानत है और मालिक के सामने हिसाब देना है तो इसका भी हिसाब होगा कि इसको पहुंचाया या नहीं। इसलिए दीन को दूसरों तक पहुंचाना ना सिर्फ ये कि दूसरों के लिए जरूरी है, मरने के बाद के जवाब से बचने के लिए खुद मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। सवाल, आपकी बातें इतनी दिलचस्प और मजे की हैं कि जी चाहता है देर तक किए जाऊं, मगर बात लंबी हो गई है, इसलिए बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फी अमानिल्लाह। जवाब, आपका भी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा दस माहनामा अरमगान, नवंबर 2004। जनाब मास्टर मोहम्मद असलम साहब प्रमोद कुमार से एक मुलाकात। सवाल, अस्सलाम वालेकुम। जवाब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, आपकी तारीफ। जवाब, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, देवबंद के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरा पुराना नाम प्रमोद कुमार है। एक बहुत मजहबी जाट घराने का फर्द हूँ। अब से 7.5 साल कबल मैंने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12वीं क्लास तक तालीम हासिल की है। सवाल, अपने खानदान के बारे में बताएं। जवाब, मेरे 3 भाई एक बहन है। वालिदैन हयात हैं। जब मेरी 6 साल की उम्र थी मेरे वालिद ने संन्यास ले लिया था। वो गंगा के किनारे एक बड़ा मशहूर आश्रम चलाते हैं। हिंदू मजहब के बड़े ज्ञानी और आलिम हैं। इसके अलावा खानदान में चचा ताए और फिर भैया वगैरह हैं। हमारा खानदान बड़ा खानदान है। सवाल, आपने कहा कि आपके वालिद हिंदू मजहब के बड़े ज्ञानी रहे हैं, क्या अब नहीं है? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। सवाल, अपने कबूल इस्लाम का हाल सुनाएं। जवाब, हकीकत यह है कि इस्लाम दीन फितरत है। जैसा कि हमारे हजरत फरमाते हैं कि जिस तरह इंसान के पेट को भूख को प्यास लगती है और पानी और खाने के बगैर आदमी बेचैन रहता है, इसी तरह इंसान की रूह इसकी आत्मा को दीन इस्लाम खुसूसन तौहीद खालिस की तलाश और बेचैनी रहती है। मुझे बचपन ही से ख्याल आता था कि जिस तरह मालिक ने इस दुनिया को बनाया है इस तक किस तरह पहुंचा जाए। बहुत से धर्म गुरुओं में से मैं बात करता था मगर इत्मीनान ना होता था। एक हाफिज साहब से मेरा राब्ता हुआ। मैंने उनसे भी इस तरह के सवालात किए। उन्होंने इस्लाम के बारे में मुझे बताया जो मुझे अच्छा लगा। सबसे ज्यादा इस्लाम की पाकी का नज़्म मुझे बेहद पसंद आया। मुझे ख्याल आता था कि पेशाब पखाना ऐसी गंदी चीजें हैं कि आदमी जहाँ पर ये हो वहाँ खड़ा होना पसंद नहीं करता। जब ये पेशाब इंसान के कपड़ों और जिस्म को लगेगा तो इंसान कैसे पवित्र पाक हो सकता है? और मालिक तो बड़ा पवित्र पाक है, वो नापाक इंसान को कैसे मिल सकता है? पाकी की इस चाहत और पसंद के जरिए मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में कुफ्र शिर्क से पाक कर दिया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हाफिज साहब मुझे खुद हजरत के पास लाए। फिर मैंने 4 महीने जमात में लगाए, खूब मेहनत से दीन सीखा। फिर हजरत मौलाना मुझे जांचक जिला जमुना नगर भेज दिया। वहाँ मदरसे में मैंने कुरान शरीफ, तजवीद और दीनियात पढ़ी और बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद 2 साल से फुल्क में हूँ। सवाल, कबूल इस्लाम के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जवाब, एक आदमी जब अपना सब कुछ छोड़ के नए माहौल में आता है तो इसको परेशानी तो होती ही है। मुझे भी इससे वास्ता पड़ा। कई बार कई रोज तक फाका करना पड़ा।
मेरे लिए सबसे तकलीफ की बात मुसलमान भाइयों के सवालात और हर आदमी का इंटरव्यू लेना था, मगर इन सब के बावजूद मैंने जिस कीमती ईमान को कबूल किया था, इसके लिए ये परेशानियां कोई ज्यादा नहीं लगी। सवाल सुना है, आप एक बार गुस्से में आकर कहीं चले गए थे, तो फिर आपके दोबारा आने का क्या जरिया बना? जवाब: अपनी नासमझी और कुछ लोगों के मुसलसल सवालात से तंग आकर मैं गुड़गांव एक ईसाई मिशन में चला गया था। असल में मेरी गलती ये थी कि मैं समझता था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है तो मेरे मसाइल का हल करना मुसलमानों के जिम्मे है। कबूल इस्लाम को मैं शैतान के बहकावे में मुसलमानों पर एहसान समझने लगा था, मगर मेरे अल्लाह का करम था कि मेरा अकीदा ठीक रहा। गो मैं जाहिर में ईसाई मिशन से जुड़ गया था। वहाँ के हाल को देखकर भी मुझे इस्लाम की कदर बढ़ी, और सबसे ज्यादा मेरे हजरत की माँ से ज्यादा ममता शफकत बल्कि उनकी रूहानी तवज्जो मुझे मकनातीस की तरह खींचती रही। मैं वहाँ बेचैन रहता था, फिर बिला इख्तियार मुझे फुल्त आना पड़ा। खतौली आकर मैंने हजरत को फोन किया। हजरत ने फुल्त बुलाया। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था। मुझे शर्म आ रही थी, मगर हजरत ने मस्जिद में बुलाया और जामे मस्जिद में खूब गले लगा कर रोए। मुझे समझाया, दोजख की आग का खौफ दिल में बिठाया। मुझे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि ईमान को तुम मुसलमानों पर एहसान समझ रहे हो। हजरत ने कहा कि अगर एक इंसान किसी डूबते आदमी को या आग में जलते आदमी को इस पर तरस खाकर डूबने या आग से बचने चला जाए और उसको वहां से निकाल ले, और डूबने और जलने से बचने वाला आदमी उसे ये कहे कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आप मेरे सारे मसाइल आपको हल करने हैं, मेरी रोटी कपड़े सारी जरूरियात का इंतजाम आपको करना है, तो इस आदमी की कैसी गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने सलात तौबा पढ़ी। सवाल: इस्लाम में आकर आप कैसा महसूस करते हैं? जवाब: इस्लाम में आकर मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, और मुझे जब भी अपने ईमान का ख्याल आता है तो मुझे अपने अल्लाह के सामने सजदे में गिरने को जी चाहता है, इस ख्याल से कि कहीं मुझे मेरे अल्लाह ने हिदायत ना दी होती और हजरत के प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं ईसाई मिशन से ना निकलता और इसमें मेरी मौत हो जाती तो क्या होता, और मेरा रवां खड़ा हो जाता, जैसे देखिए इस वक्त हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। सवाल: आपने फरमाया आपके वालिद ने भी इस्लाम कबूल किया, उनके कबूल इस्लाम का कुछ हाल बताएं। जवाब: हमारे हजरत ने मेरे खानदान के बारे में मालूम किया। जब मैंने उन संन्यास लेने वालों और आश्रम का हाल बताया तो उन्होंने मुझे उनकी हिदायत के लिए दुआ को कहा। हजरत का ये भी ख्याल है कि अगर नौ मुस्लिमों को कार दावत पर ना लगाया जाए तो उनका परेशानियों से घबरा कर मुर्तद होने का खतरा रहता है। उन्होंने मुझे वालिद साहब के पास जाने के लिए कहा और मौलाना इमरान मुसाहिरी को मेरे साथ भेजा। हम आश्रम पहुंचे तो मेरे वालिद ने पहचान लिया, मगर वहां के माहौल की वजह से इजहार नहीं किया। हमने उनके गुरु का हवाला दिया, जिसको बहाना बनाकर शफकत पदरी में उन्होंने हमारी बहुत खातिर की। चलते वक्त दोनों को 100-100 रुपए भी दिए और फिर आने को कहा। हम लोग फुल्त आए तो हजरत ने कारगुजारी सुनी और इस पर अफसोस किया कि आपने दावत क्यों नहीं दी। दोबारा जाने को कहा, फिर फुल्त की दावत देने को कहा। हम दोबारा गए और दावत तो देने की हिम्मत ना हुई। फुल्त के लिए वादा लिया और हजरत की किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में देकर आ गए। उन्होंने एक हफ्ते बाद आने का वादा कर लिया। एक हफ्ते बाद मैं उनको लेने गया। शुरू में माहौल से मानूस करने के लिए उनको चांचक मदरसे में रखा। 2 रोज बाद फुल्त पहुंचे। वो आपकी अमानत किताब से बेहद मुतासिर थे। हजरत से मिलने को बेचैन थे। रात को 1 बजे हजरत सफर से आए। सुबह 8 बजे हजरत से मुलाकात की। मेरे वालिद को हजरत ने देर तक गले लगाया, फिर तन्हाई में बातें की और थोड़ी देर के बाद खुशखबरी मिली कि मेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया है। हम लोगों ने तफसीलात मालूम की तो हजरत ने बताया कि मैंने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की और फिर इनसे कहा कि आप मास्टर इस्लाम के वालिद होने की वजह से मेरे भी वालिद की तरह हैं। अगर मुझे मालूम हुआ कि आप अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ आग का अलाव जल रहा है और आप इसमें किसी वक्त भी गिर कर जल जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा? उन्होंने कहा, आप बड़े दुख में रहेंगे। तो मैंने अर्ज किया कि जब मुझे यकीन है कि ईमान के बगैर मुक्ति निजात नहीं और मौत का कुछ पता नहीं, कौन सा सांस आखिरी हो, तो मुझे किस कदर तकलीफ होगी? उन्होंने कहा, बेशक बहुत तकलीफ होगी। मैंने अर्ज किया कि बस आपके इख्तियार में है, या तो ईमान कबूल करके हमें चैन दिला दें या इस तरह तड़पता छोड़ दें। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो आपकी अमानत पढ़कर तय कर लिया था कि मुझे ईमान लाना है। मुझे बार बार ये ख्याल आता था कि जब उनकी किताब पढ़ने में ऐसा आनंद मज़ा और प्रेम मिला है तो उनसे मिलने में कितना आनंद होगा। मैं समझ गया था कि वो कोई महान आत्मा है जो ईश्वर ने धरती वालों के उद्धार के लिए भेजी है। अब इसकी 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि मुझे मुसलमान कर ले, मैं भी मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करूं। दूसरी सूरत ये कि मेरे साथ बहुत से लोग मेरे शागिर्द हैं जो मुझसे इसलिए जुड़े हैं कि उनको शांति का सच्चा रास्ता बताऊंगा। उनका भी हक है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, मगर अभी जाहिर ना करूं और वहां जाकर अपने लोगों से कहूं कि गंगा की तराई में हमारी सेहत अच्छी नहीं है। अब हम पहाड़ों के पास अच्छी आबो हवा में आश्रम बनाएंगे, फिर उनको भी साथ लाएं और उनको सच्चाई बताएं। अब आप जैसा कहें वही वैसा ही होगा। मैंने उनसे कहा, यह सूरत बहुत अच्छी है, पहले आप कलमा पढ़ लें। उन्होंने कलमा पढ़ा और अब्दुल्ला नाम तजवीज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल: फिर इसके बाद उनका क्या हुआ? जवाब: हजरत के दर्द ने उनको शिकार कर लिया। बार बार वो हजरत के गले लगते थे। उन्होंने हजरत से कहा, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, हिंदी का कुरान दिलवा दे। मैंने कुरान पढ़ा है, मगर इस वक्त मैंने मुसलमानों का धर्म
ग्रंथ समझ कर पढ़ा है। अब मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे मालिक मुझे क्या कहते हैं। इसके बाद वो आश्रम चले गए। अपने दो चेलों के साथ वहां पर कुछ दिन जमुना नगर के मदरसा में रहे। उनके दोनों चेलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक चेले की बात आपको क्या बताऊं कि वो साढोरा में एक हिंदू नाई के यहाँ अपनी जटाएं बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो नाई ने कहा कि क्या तुम्हारे सर में जूं हो गई है। उसने कहा नहीं। नाई ने मालूम किया तो फिर बाल क्यों कटवा रहे हो। उसने बगैर झिझक के कहा असल में मैं मुसलमान हो गया हूँ और शिर्क और कुफ्र की हर चीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए जटाएं बाल कटवा रहा हूँ। सोच के मेरे अभी वालिद के लिए किसी जगह का नज्म नहीं हो सका, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मजबूत हैं, बेचैन हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और जिक्र करते हैं। सवाल, जज़ाकुमुल्लाह, आपने अपने खानदान के लोगों पर काम किया और इसके कैसे अच्छे असरात हुए। जवाब, मेरे हजरत ने मुझे मुतवज्जा किया। शुरू में मेरे घर वाले मुझसे नफरत करते थे, मगर जब मैं उनके लिए दिल से हिदायत की दुआ करता और हमदर्दी में दावत की नीयत की तो हालात बदल गए। अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। दाई के साथ गैबी मदद आती है। अल्लाह रास्ते खोलते हैं, हम फजूल में डरते हैं। अब सब रिश्तेदारों के हाँ मेरा आना जाना है। वो मेरा बहुत एहतराम करते हैं, गौर से बात सुनते हैं, बल्कि एक तरह की अकीदत से मिलते हैं। अपने दुनियावी मसाइल में दुआ को कहते हैं। मैंने हजरत की किताब आपकी अमानत उनको दी। कुछ लोग बहुत करीब हो गए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनमें से बहुत लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। इनमें बाज लोग बहुत पढ़े लिखे और बड़े ओहदों पर हैं। सवाल, आप मुल्क में दिन रात मस्जिद और दावत से जुड़े रहते हैं, ये जज्बा आप में किस तरह पैदा हुआ। जवाब, मेरी हजरत का सदका है। उन्होंने हमारे दिल में ये बात बिठाई कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद दावत और दीन की खिदमत है। रोजगार और दूसरी चीजें जिंदगी की जरूरियात हैं। मेरा दिल चाहता है कि बुजुर्गों की बस्ती फुल्त एक इस्लामी बस्ती बन जाए, ताकि लोग यहाँ आकर ही इस्लाम को जान लें और कबूल करें। सवाल, आप मुसलमानों के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे। जवाब में, हकीर आदमी, पैगाम तो क्या दे सकता हूँ, बस मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त कर सकता हूँ। ये दरख्वास्त ये है कि प्यारे नबी आखिरी हज के मौका पर सबसे वसीयत कर गए कि फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, ये दीन हर गायब शख्स तक पहुंचा दिया जाए। खत्म नबूवत के बाद ये कार्य दावत इस्लाम की सबसे बड़ी शान के तौर पर हमें मिला है। इस काम में गफलत और ईमान को लोगों तक ना पहुंचाने की वजह से हमारे हजरत के बकवाल हर मिनट में 313 हमारे भाई कुफ्र और शिर्क पर मरकर हमेशा की आग का ईंधन बन रहे हैं। ये सब हमारे भाई हैं। अगर ना जानने और ना समझने की वजह से वो हमसे दुश्मनी करते हैं तो इससे उनका हक खत्म नहीं होता। हमारी तरक्की और निजात का वाहिद रास्ता दावत है। हमारे नबी से इश्क का दावा, आपकी एक प्यार भरी वसीयत और आखिरी नसीहत और ख्वाहिश का हमने ख्याल ना रखा, ये बहुत दुख की बात है। दूसरी दरख्वास्त यह है, इंसान एक समाजी जानदार है, इसे जीने के लिए एक समाज की जरूरत है। एक नौ मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने के बाद हिजरत करके अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसको बड़े सहारे और गले लगाने की जरूरत होती है। जंगल बयाबान में वो लोगों और मुसलमान भाइयों का सहारा तकता है। हर नए आने वालों को अपने पैरों पर खड़ा करने की जरूरत है। वक्ती तौर पर कुछ मदद करके, कुछ सदका खैरात देकर इसको भिखारी बनाना या इसकी आदत बिगाड़ना ठीक नहीं। अगर एक मुसलमान भाई मदीने की मुआखात का नमूना बनकर एक मुहाजिर भाई की फिक्र को ओढ़ लेकर, इसको कर्ज देकर या शिरकत करके इसको पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करे तो इसके खानदान को दावत देना आसान हो जाए, तो इसको भी तसल्ली होगी। इसके लिए कुछ रोज हमारे हजरत के साथ आकर मोहब्बत और ममता सीखनी चाहिए। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जवाब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ा दज़महनामा अरमगान, फरवरी 2003। जनाब अब्दुर्रहमान साहब रघुबीर सिंह से एक मुलाकात। सब अहमद अब्बा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुर्रहमान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, अब्दुर्रहमान भाई खैरियत से हैं। अरमगान के लिए कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अहमद भाई ज़रूर कीजिए, मेरी खुशकिस्मती होगी। सवाल, अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं। जवाब, मेरा नाम रघुबीर सिंह था। मैं कस्बा खतौली के एक कुम्हार मजदूर घराने में पैदा हुआ। घर के लोग सादगी में मुझे रघु कहा करते थे। 1971 में अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई। इस वक्त मेरी उम्र 21 साल रही होगी। मेरे वालिद दीप चंद जी का इंतकाल हो गया। अब मेरे 3 भाई और 2 बहनें हयात हैं। वालदा का मेरी शादी के साल इंतकाल हो गया था। इस वक्त मैं खतौली में जनरल मर्चेंट की दुकान करता हूँ। दरमियान में मैंने नाई की दुकान भी की थी। शरई कबाहतों की वजह से अब मैंने वो छोड़ दी है। सवाल, अपने कुबुल इस्लाम का वाक़या सुनाइए। जवाब, मेरे कुबुल इस्लाम का वाक़या एक लतीफ़ा है। हुआ ये कि 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उनका मेकअप भी हमारे खानदान से ज़रा ऊंचा था। उनके वालिद एक अच्छे किसान थे और कुछ कारोबार भी करते थे। हमारे घर गुर्बत की हालत में उसका दिल न लगा। मैं 10वीं क्लास फेल था। वो मुझसे पढ़ी हुई भी ज्यादा थी। उसने इंटरमीडिएट पास कर रखा था। वो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। एक मरतबा उसके मेके वाले उसको लेने आ गए। वो घर चली गई। कुछ जमाने के बाद मैं उसको लेने गया। उसने आने से इनकार कर दिया। मुझे बहुत सदमा हुआ।
फिर मेरे वालिद उसको लेने गए, मगर उन लोगों ने उसको नहीं भेजा। रिश्तेदारों और जिम्मेदारों से सिफारिशें कराई, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सारी ज़ाहिरी कोशिशें बेकार हो जाने के बाद सयानों और मुल्लाओं से टोटके, गंडे और तावीज़ कराने शुरू किए, मगर काम बनने की कोई सूरत ना निकली। मैं उसको बहुत याद करता, मेरा दिल हर काम से उचाट हो गया और नीम पागल सी हालत में मैं बेचैन रहता। मेरे वालिद को किसी ने बताया कि जुम्मा की रात हफ्ता की सुबह तक अकबर खां वाली मस्जिद में मुसलमानों का बड़ा इज्तिमा होता है। वहाँ बहुत से मौलाना लोग आते हैं, आप वहाँ जाओ। मेरे वालिद साहब सेंचर की सुबह को वहाँ पहुँचे। लोगों ने बताया कि मस्जिद के बाहर बैठ जाओ, जब प्रोग्राम खत्म होगा किसी मौलाना से मिलवा देंगे। एक मुल्ला जी मस्जिद से बाहर थेरी की ठेली लगाते थे। मेरे वालिद साहब उनके पास गए और अपना दुख बताया। उन्होंने कहा, हम खतौली वाले सारे कामों में फुल्त वालों के पास जाते हैं। वो नौजवान खड़े हुए तकरीर कर रहे हैं, वो फुल्त के रहने वाले हैं। वो अगरचे देखने में मौलवी नहीं लग रहे हैं, मगर फुल्त के हैं, और फुल्त के लोग बहुत पहुंचे हुए हैं। जब वो निकलें तो बस उनसे चिमट जाना। वो मना करेंगे, अगर उन्होंने तेरा काम कर दिया तो बस तेरा काम बन जाएगा। सवाल, वो नौजवान कौन साहब थे? जवाब, मैं बता रहा हूँ, असल में वो आपके वालिद साहब थे। इस वक्त मिशन स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ते थे। स्कूल की ड्रेस में इज्तिमा में शरीक होते थे। गो वो जमात से लगे हुए थे और बहुत अच्छी तकरीर करते थे, मगर लोग इस वक्त उनको मौलवी साहब कहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हफ्तावारी इज्तिमा में जोड़ने वाली या सुबह 6 नंबर वाली बात अक्सर वही करते थे। इशराक से फारिग होकर वो बाहर निकले, बस्ता साथ था, स्कूल की तरफ रुख था। मेरे वालिद उनके पीछे आवाज लगाते दौड़े, मौलवी साहब, मौलवी साहब। वो मौलवी साहब होते या अपने आप को मौलवी समझते तो सुनते। मेरे वालिद ने दौड़कर उनके कांधे पर हाथ रखा और बोले, जी ऐसी भी क्या बात है, इतना आवाज दे रहा हूँ, सुनते भी नहीं। आपके वालिद बोले, आप तो मौलवी साहब आवाज दे रहे थे। मैं मौलवी साहब कहाँ हूँ? मेरे वालिद बोले, ये तो मुझे मुल्ला जी तेहरी वालों ने खूब बता दिया है कि फुल्त वाले अपने आप को बहुत छुपाते हैं। आपको मेरा काम करना पड़ेगा। उन्होंने मालूम किया कि आपका क्या काम है। मेरे वालिद साहब ने कहा, लड़के की बीवी नहीं आती, लड़का गम में मरा जा रहा है, कुछ काम भी नहीं करता, ऐसा तावीज़ दे दो कि बहू आ जाए। वो बोले, भाई मुल्ला जी ने आपसे मजाक किया है, मेरे तो परदादा ने भी कभी तावीज़ नहीं बनाया। मेरे वालिद साहब को मुल्ला जी ने बताया था कि वो इनकार करेंगे, तुम हरगिज ना मानना। आपके वालिद के इनकार से उनको और भी यकीन हो गया कि छुपे हुए आदमी हैं, हर एक का काम नहीं करते, इसलिए उन्होंने इसरार किया। बोले, आप मुझे तो नहीं बहका सकते हैं, मुझे असलियत सब पता है, मैं आपके साथ रहूंगा और जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं हरगिज नहीं टलूंगा। मौलवी साहब बताया करते थे कि बहुत समझाने और माजरत करने के बावजूद जब वो नहीं माने तो उन्होंने जान छुड़ाने के लिए अगले सेंचर का वादा करके अपनी जान बचाई। उनका ख्याल था ये था कि किसी जानने वाले से तावीज़ ला कर दे दूंगा। इस ज़माने में फुल्क में हज़रत शेखुल हदीस के एक मुरीद हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब मदरसा में पढ़ाते थे, वो ये काम जानते थे। ख्याल था कि उनसे तावीज़ बनवा कर ला दूंगा। मेरे वालिद ने अगले सेंसर के वादे पर उनको छोड़ दिया। अगले हफ्ता उनको याद नहीं रहा। हफ्तावारी प्रोग्राम में सुबह के 6 नंबरों पर बात उनको करनी थी। मौलाना साहब बताते हैं कि ज़रा दिन की रोशनी हुई, बात करते करते तकरीर के दौरान जूतों वाले बरामदा की तरफ गर्दन घुमाई तो मेरे वालिद पर निगाह पड़ी। वो मुझे लेकर सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए थे। कुम्हारों की सुबह भी जल्दी होती है। पिछले हफ्ता का स्टार याद आया, तावीज़ लाना याद नहीं रहा। बात का तवाज़ुन बिगड़ गया। किसी तरह अपने आप को संभाल कर बात पूरी की। इशराक के लिए नियत बांधी। हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी का किसी कंजरी को इसकी फीस देकर मुसल्ला पर नमाज के लिए खड़ा करके उसके लिए दुआ करने वाला वाक़या याद आया कि इलाही मुसल्ला तक तो मैंने पहुंचा दिया, दिल को फेरना आपका काम है। अपनी बात में यही वाक़या सुनाया था। इसकी बरकत से नमाज में जान बचाने की तरकीब सूझी। 2 रकात पढ़कर उन्होंने मेरे वालिद को बुलाया और कहा, अपने बेटे को मस्जिद के गुसल खाना में भेजकर गुसल करने को कहो। उन्होंने मुझे नहाने को कहा। नमाज पढ़कर वो मुझे मस्जिद के बाहर वाले हुजरा में ले गए और 3 बार कलमा तैयबा पढ़वाया, उसके माना बताए और मुझे कहा, बस एक मालिक सब कुछ करने वाला है, अगर तुम ये कलमा दिल में बिठा लिया तो वो मालिक तुम्हारी बहू को बगैर बुलाए भेज देगा। और मुझे एक कागज़ पर हिंदी में कलमा तैयबा लिख कर दिया कि हर वक्त सच्चे दिल से इसका जाप करते रहो। बाहर आकर मेरे वालिद से कहा कि मैंने उनको एक मंत्र बता दिया है, ये उसका जाप करेंगे, मालिक ज़रूर आप लोगों की सुन लेगा। मौलाना साहब बताते थे कि इसके बाद मस्जिद में जाकर उन्होंने 2 रकात और नफिल पढ़ी और खूब दिल से दुआ की कि इलाही जुबान से तूने कहलवा दिया, दिल में आप उतार सकते हैं। हम दोनों मुतमईन होकर घर लौटे। चौथे दिन मेरे ससुर मेरी बीवी को लेकर मेरे घर आए, खुशी खुशी उनको छोड़कर चले गए। मुझे इस मंत्र पर बहुत एतकाद हो गया। मैं खूब इसका जाप करता और कभी जोर जोर से मजे ले लेकर पढ़ता, कभी मजे मजे में मुझे वजद आ जाता। अगले सेंचर को मेरे वालिद 2 किलो लड्डू लेकर फिर पहुंचे। इस सेंचर को आपके वालिद साहब नहीं आए, वो मायूस होकर लौटे और तीसरे सेंचर को फिर गए। इज्तिमा से फारिग होकर आपके वालिद साहब मस्जिद से निकले तो मेरे वालिद ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और वो लड्डू पेश किए। उन्होंने लड्डू वापस कर दिए कि इसमें मेरा कुछ काम नहीं, मालिक ने आपकी सुन ली। मेरे वालिद ने कहा, एक बात ये पूछनी है कि मेरा बेटा हर वक्त आपके जिस मंत्र का जाप करता रहता है उसे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा है, इसको बहुत फ़ायदा होगा। मैं हर वक्त कलमा पढ़ता रहता
पढ़ता रहा। एक दिन मजहब मजहब में जोर जोर से मैं इस कलमा को पढ़ता जा रहा था। फुल्द के एक मुल्ला जी जो बढ़ाई का काम करते थे, गुलाम हुसैन उनका नाम है, वो हमारे मोहल्ला में कबाड़ खिड़कियां बनाने आते थे। उन्होंने सुन लिया, वो हमें अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने सुना तो बोले, अरे रघु, ये तू क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा, ये मंतर है, फुल्द वाले मौलवी साहब ने बताया था, इसी से तो मेरी बीवी आई है। उन्होंने कहा, ये तो इस्लाम का कलमा है, ये कलमा पढ़कर ही तू आदमी मुसलमान होता है। मैंने कहा, क्या मैं मुसलमान हो गया? उन्होंने कहा कि अगर सच्चे दिल से तूने पढ़ा है तो मुसलमान ही हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं तो सच्चे दिल और विश्वास से ही पढ़ता हूँ, ऐसा तो आप भी ना पढ़ते होंगे, फिर तो तू मुसलमान हो गया। मैंने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, अब तुम्हें अपना मुसलमान नाम रखना चाहिए और नमाज याद करके 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। मैंने पूछा कि क्या नाम रखूं? उन्होंने कहा, अब्दुल रहमान रख लो। मैंने कहा, नमाज मुझे कौन सिखाएगा? उन्होंने कहा कि मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा, बहुत अच्छा। वो रात को मुझे रोजाना वक्त देते, दिन छुपने के बाद वो मुझे नमाज सिखाते। 15-20 रोज में मुझे खासी नमाज आ गई। उन्होंने मुझे हिंदी में 1-2 किताबें ला कर दी, जन्नत की कुंजी और दोजख का खटका, तो मुझे आज तक याद है। मैं छुप छुप कर नमाज पढ़ने लगा। मैंने वो किताबें अपनी बीवी को पढ़ाई और उनको अपने मुसलमान होने का हाल बताया। उनको कसम देकर कहा कि सच्ची हिंदू बीवी शौहर के साथ उसकी चिता में जल जाती है, तुझे भी मेरे मजहब में आ जाना चाहिए। वो तैयार हो गई। मुल्ला जी गुलाम हुसैन ने उसको भी कलमा पढ़वा दिया, उसका नाम फातिमा रख दिया। अब हम एक दूसरे की पहरेदारी करके कभी कभी नंबरवार घर में भी नमाज पढ़ लेते थे। एक रोज मेरे वालिद ने मुझे नमाज पढ़ते देख लिया, मुझे डांटने लगे। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, आपसे जो हो वो कर लो। उन्होंने भाइयों के साथ मिलकर मुझे बहुत मारा और मैं घर से भाग गया। सवाल, इसके बाद क्या हुआ? जवाब, इसके बाद मैं 30 रोज घर से बाहर रहा। मैं दिल्ली चला गया। ख्याल था कि बस यहाँ कोई रोजगार देख लूंगा। मेरे वालिद साहब 5-6 लोगों को लेकर फुल्द पहुंचे और आपके वालिद साहब से मेरा पता मांगा। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, मगर उनको यकीन ना आया। वो कहते रहे कि आपने उस पर जादू करके उसको मुसलमान किया और हमारा लड़का आपके पेट में इल्म में है। अगर परसों तक वो ना आया तो हम थाने में रिपोर्ट कर देंगे। आपके वालिद बहुत परेशान हुए। उनको समझाया कि मेरी तो आज तक मुलाकात भी नहीं हुई, मैंने आपके साथ भलाई की, आप इसका ये बदला दे रहे हैं। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो मुसलमान हो गया, मगर उन्होंने एक ना सुनी और बदतमीजी से धमकी देकर वापस आ गए। सवाल, फिर क्या हुआ? जवाब, ना जाने क्यों मेरा दिल दिल्ली में बहुत घबराया। मेरे दिल में शदीद तकाजा हुआ कि फुल्द जाऊं और आपके वालिद साहब से मिलूं। रात गुजारना मुश्किल हो गया। मजबूरन स्टेशन पहुंचा। रात को एक गाड़ी खतौली जाती थी, उससे खतौली पहुंचा। सुबह सुबह पैदल फुल्द पहुंचा। मौलाना साहब मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने सारा माजरा सुनाया। उन्होंने बताया कि मैं तो बहुत परेशान था, हमारे घर वाले भी थाना पुलिस से बहुत बचते हैं, बहुत दुआ कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। मैंने उनसे कहा, आप मुझे खतौली ले चलें। मेरा हाथ पकड़कर मेरे वालिद के हाथ में दे दें कि आपका ये बेटा है, अब आप छोड़ें या बंद करके रखें, मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। इससे भी मालूम कर लो कि मैं इससे कभी मिला था। उन्होंने कहा, वो तुम्हें बहुत मारेंगे। मैंने कहा, मैं खुद संभाल लूंगा। वो मुझे लेकर गए और मेरे पिताजी के हाथ में मेरा हाथ देकर आए और कहे आए कि आइंदा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और इसे पूछ लो ये कभी मुझसे मिला था। मैंने कुछ रोज मामला को ठंडा करने के लिए घर में रहना शुरू किया। हमारे मोहल्ला के करीब में कुछ मुसलमान बेकरी का काम करते थे जो पूना में रहते थे। मैंने हिकमत के साथ वालिद साहब को इस पर राजी किया कि मैं भी उनके साथ वहां जाऊंगा और कुछ कारोबार करूंगा। मैं पुनः चला गया, फिर अपनी बीवी को भी ले गया। वहां जाकर मुझे वतन बहुत याद आया। मैंने कुछ पैसे कमाए और खतौली के एक मुस्लिम मोहल्ला में एक मकान बना लिया। जमात में वक्त लगाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दीन से बहुत अच्छा ताल्लुक हो गया। महाराष्ट्र के एक जमात के साथ मेरा मुजफ्फरनगर का रुख बना। मुझे इसरार करके जमात का अमीर बना दिया गया। हम फुल्द पहुंचे। मैंने अजान भी अरबी लहजा में सीख ली थी। जोहर की अजान कही मौलाना साहब से मिलने के लिए घर पहुंचा। उस वक्त तक आपके वालिद भी मौलाना साहब बन गए थे। मैं उनसे चिमट गया, वो मुझे नहीं पहचान सके। जब मैंने बताया कि मैं खतौली वाला आपका रघु हूँ तो वो मुझे नए हुलिये में देखकर बहुत खुश हुए। जब मालूम हुआ कि जोहर की अजान मैंने कही है तो उन्होंने मुझे गले लगाया और बहुत खुश हुए। जमात का ये वक्त जो मेरे अपने इलाके में लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सवाल, इसके बाद क्या हुआ? जवाब, इसके बाद मौलाना साहब के मशवरा से मैं खतौली आकर रहने लगा और अपने घर वालों को खतौली से खर्च भेजता था। तकरीबन 10 साल से मैं खतौली में रह रहा हूँ, मगर मेरे घर वालों को ये इल्म है कि मैं पुन्ना रहता हूँ। पहले मैंने नाई की दुकान खोल ली थी, मगर मुसलमानों की दाढ़ी मोड़ना मुझे अजीब लगता था, इसलिए कि नबी की सुन्नत पर उस तरह चलाना मुझे नागवार था। फिर मैंने जनरल मर्चेंट की दुकान खोल ली। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। सवाल, सुना है आपने एक मकतब भी तो कायम किया है? जवाब, हमारे ससुराल में खासे मुसलमान रहते हैं। मेरे 2 सालों को अल्लाह ने मेरी कोशिश से हिदायत दे दी है। वहाँ पर कोई तालीम का नज़्म नहीं था। मैंने मौलाना साहब से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि मरने के बाद के लिए कोई सदका जारिया ज़रूर बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक मकतब कायम किया गया है जो पहले मस्जिद में चलता था, अब गांव वालों ने ज़मीन दे दी है। 4 कमरे भी तामीर हो गए हैं। 5 मदरस काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। सवाल, आपके कितने बच्चे और क्या कर रहे हैं? जवाब, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 लड़के, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसन, 2 बेटियां हैं, आयशा और ज़ैनब। अल्हम्दुलिल्लाह सब दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़ा लड़का बहुत अच्छा हाफिज हो गया है, गुजरात के एक मदरसा में पढ़ रहा है। मोहम्मद अली के 16 पारे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हसन के 3
پارے حفظ ہو گئے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ ذہین ہے۔ عائشہ اور زینب دونوں نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے، ان کا بھی حفظ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے شب قدر اور جماعت میں دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے سارے بچوں کو حافظ عالم دین کا داعی بنا دیجئے، صحابہ کے انداز کا مسلمان بنا دیجئے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اللہ جو مجھے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے ہیں وہ میری فریاد ضرور سنیں گے۔ سوال: اسلام سے پہلے کی زندگی کے بارے میں آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جواب: میں اس تصور سے بھی کام چاہتا ہوں کہ اگر میرے اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے تو کفر پر میری موت ہوتی۔ اچانک پھر مجھے غم سا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری شامت اعمال کی وجہ سے مجھ سے اسلام کی نعمت چھین نہ لی جائے، اس لیے کہ اصل ایمان تو خاتمہ کا ہے۔ میں اس تصور سے کام کر اکثر سجدے میں گر جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں۔ آپ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ کسی کو چیز دے کر یا ہدیہ دے لے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسا الٹی کر کے چاٹنے والا۔ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ نے میری خواہش کے بغیر مجھ کو ہدایت دی ہے، میرا خاتمہ بھی ایمان پر کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اللہ میرے خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے۔ سوال: ضرور انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ دز ماہنامہ ارمغان، اگست 2004۔